नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के होटल रेडिसन में रायसीना हाउस के द्वारा आयोजित समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के इस विमर्श में बनारस के हेरिटेज तथा अन्य चीज़ों पर यहां विशेषज्ञों ने जमकर विमर्श किया और ये बहुत बड़ी पहल हुई है बनारस के लिए कि काशी का विकास कैसे होगा, बनारस हेरिटेज सिटी में कैसे आएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अब तक कार्य किया है वो कितना सार्थक है। सब पर यहाँ विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय व्यक्त किया। Because I have never got any initiation in my life, so that's why I am pure. This is the way my knowledge go of 40 years. None has done that work. Simple thing, one example why I say Guruji to him. He never liked this term also. He said we are friends. Okay. A book has been written based on his 40 years of work, sketched and drawings by the same man. What he used to say, what is the beautiful thing about Banaras? He worldwide moved. He is a member of UNESCO, several teams, etc. He says that the city has been destroyed historically at least 3 times. The 3rd time was completely devastated. All records available. But when city revived, how they have kept all those ancient things in the same way that you feel now emotionally, psychologically, literally, everything is right, nowhere else in the world. And that is the beauty of Banaras. Nothing to talk about what destroyed, but how that continuity has been maintained. This has all been published in scientific literature. This is one thing. The second thing, related to something scientific, there are few things, only 2 I will cite, is the real story. So, about 50 years story I can't tell in 5 minutes. Not possible. Those who are interested in what? Till date, that is only one in the whole world. This is not my statement. You can open International Union of Cultural Astronomy series and you can find this. What is that? That is in Banaras. So let me cite that story. You all know Mahabharata story of Bhishma Pitama. He was having that boon from the mother, the Iksha Myrti. Okay? So when that sun has crossed Nadani route, and that was exact 14th of January, Makar Sankranti, sunrise start, just hitting Yamarajan, that goes to Sambadipti. And this is wonderfully described in a textual tradition. But generally when you go to emotionality or scholarship, you are always trying to glorify the thing. But the scientists said no, we have to decode it. 7 years measurement, decimal 5 digit, 200 times ranges are measured by 11 satellites from US, and always the value the same. Most of the people go and they say, oh, here is a celebration. That is exactly on 14th of August. Same thing is happening. 7 years the railing is there. You see the sunlight always passing through. Who has made this? Nothing. And how? First idea we got, a great authority, Neil Purushottam Joshi ji, who was a director DG of ASI long back, that story I'm talking 90s. I was giving some lecture, he was my guru also, not formal, informal guru. He said, Rana ji, go Bhopal. And then we came to know that is 5th century. What you say only inscription 1815, that Bengali state came repairing, you are talking repairing. You are not talking scientific death. And that exactly circle is there, a dot is there, and then say some light is plotted there and all written down code. We have decoded. Then found every 14th of August, some now buildings are up. So what we did, with the computer program, we removed all the buildings and then took that how ranges are going. Exactly on 14th of August, on the railing, 100% following that 7 years measurement. And that's why the effect of the fire element, what is the sun, and then the mother element, liquidity of Gangaji. Every year underground water is coming, and that is the simple result, the true power of the cosmos meeting, and that's why the tradition is there. So that is another aspect to see like this. Now the last aspect. Last aspect is that very popularly you read the popular books everywhere, and our mind is something set in that way. What I am going to say, please excuse me, don't take it otherwise. This is all scientific and proved. Always we say this is a Hindu's capital. Yeah? Hindu's great place. But remember my dear, the survey says the only place in the whole world
maximum number of Muslim shrines are here. 1388. Historically I am talking, 100 years back. All measured 7 years of my students, and that's why in Oxford series it is published. Now what is the important thing? Important thing is that we have Bismillah Khan, like that, who always plays Shahnai every morning, if in Banaras, then Mangala Gauri. And the last breath, when ministers and people came just to see, he was just on the dying bed. They asked, what do you want? He was unable to speak. He was gone to Mangala Gauri. You can read Seema Ghosh's memorial book. The fellow gone, Paul and God. Here is that. There are 15 here shrines where more than 50% Hindus go. There is no clash at all. One side is Kawali, one side you can say all that Kirtan and Bhajan going together. Not happen. So that is another tradition. And this way you can see 1388, 15 of them as a great Sufi shrine. And the last point is, generally when you take that, this is the Lord Shiva city. Read the text. He started from the Rigvedic tradition and then Puranic tradition and the later survey and all those what we call Asthar Purana. This is not life is made here for everybody. It is up to you how you are going to accept this. That is Banaras. So it is nothing like the one side glorification. It has given place to everybody, every corner, everywhere. Here is one among the 3 oldest church, James Prinsep Church. Now okay, nobody is taking care, that is deserted from, but man who has first time in the history of cartography prepare map, which is still I teach that. So it is nothing like Baji mein nahi kar raha hu. Please relax, come to London, everything is okay. We have paraphrased it for Banaras, and not only line, we have published it, proof it, whatever worst, whatever best you want in Indian culture, nothing to worry, come to Banaras, it is up to you and you can get both. Thank you. विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बिना वेदं बिना गीतां बिना रामायणीं कथां बिना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय विद्वान प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी, इस कार्यक्रम की सूत्रधार आयोजक श्रीमती रसिका जी, उनके श्रीमान श्री शुभम जी, आदरणीय अनुज डिडवानिया जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही वैष्णवी, इस सभागार में उपस्थित हमारे सेंट्रल अमेरिका के एम्बेसडर और अन्य काशी के विशिष्ट विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट विभूतियाँ हमारे समक्ष हैं। वेद के अंदर सारे धर्मों का समावेश हो जाता है। बिना वेदम बिना गीताम, बिना गीता के माने उसके बिना भी हम भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवत मुखाद निसृता, भगवान के मुख से निकले हुए जो शब्द हैं वही गीता है। और गीता हमें ये बताती है कि मामनुस्मर युद्ध च संभावितस्य पुरुषस्य मरणादतिरिच्यते। जब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन थे तो अर्जुन को मोह होने लगा कि हम किससे लड़ें, हमारे सामने हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे परिवार के लोग। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि संभावितस्य पुरुषस्य मरणादतिरिच्यते। सम्मानित पुरुष के लिए, सम्मानित योद्धा के लिए युद्ध के मैदान से पलायन मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकारक है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। वहाँ भाव क्या है कि अपने कर्म को, अभी मैं कल एक बहुत ही भारत के प्रसिद्ध पत्रकार जो हमारे अत्यंत सुहृद मित्र भी हैं, उनका मैं एक वर्जन सुन रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके। मैंने फ़ोन भी लगाया, उनको फ़ोन नहीं लगा, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में और चाइना में आर्थिक स्तर पर कितना जो है चाइना ने प्रोग्रेस किया और भारत कितना पीछे रह गया। उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ के लोग एक दिन सप्ताह में चर्च में जाते हैं और अपना प्रेयर करके चले आते हैं, उसके फसाड़ में नहीं फंसते हैं।
और हम क्या करते हैं कि हम जो है दुनिया भर के पूजा पाठ इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं और राम नाम का चादर तान करके सो जाते हैं, इसलिए हमारी प्रगति अवरुद्ध हो गई। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। है तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका अभिप्राय यह है कि जो कार्य कर रहे हो उसमें एकाग्र भाव से तन्मय होकर के, दत्तचित्त होकर के, उससे तादात्म्य में बना करके अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। यही हमारा स्मरण होगा। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना रामायण की कथा के। वहाँ भी आइए, लंका कांड में जब युद्ध के मैदान में विभीषण जी घबराए और उन्होंने भगवान राम से पूछा कि भाई कैसे जीतोगे आप? वो योद्धा है, वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, वो महाबली है, पराक्रमी है, उसके पास अक्षौहिणी सेनाएं हैं। आप नंगे पैर हो, कोमल शरीर है, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, इस वीर बलवान के ऊपर विजय प्राप्त कैसे करोगे? तब भगवान राम ने उनको उत्तर क्या दिया? बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ईश भजन सारथी सुजाना, यही विधि जितब वीर बलवाना। मेरे रथ के 2 घोड़े हैं, 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम और परहित, और लगाम जो है 3 पर लगाया है। बल है तो क्षमा का, विवेक है तो दया का, दम है तो समता का, और चौथा घोड़ा जो परहित है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं। के बिना हम भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। अगर रायसीना हाउस का ये जो मुहिम है कि भारत को किस प्रकार से विश्व स्तर पर एक इसको ऊंचा स्थान मिले और हम अपने गौरव को वहां बता सकें, तो ये सब उसमें जुड़ने लायक विषय है। बिना क्वपटुकर नहीं प्राण विप्रा पड़िया, इस प्रकार से उन्होंने बड़े ही प्यार दिया। तो उसने कहा कि क्या का अभिप्राय है कि लेखक और विद्वान जो इन सब चीज़ों को जीता है उसके लिए उसमें उसके साथ तादात्म्य बनाता है, उसके जीवन वृत्त को अपने हृदयंगम करता है, तब जाकर के कहीं उसको प्रकाशित कर पाता है। तो खैर, प्रयागराज में एक बार शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और विद्वानों के समक्ष ये बात आई कि सतीर्थ राजो जयति प्रयागः, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। इसका मतलब कि दुनिया के जितने तीर्थ हैं, विद्वान थे उन्होंने कहा कि वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर् मखभुजाम भुवने निवास। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, तो अब राजा प्रजा आप लोग बनते रहिए। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम, ये भगवान के त्रिशूल पर अविनाशी काशी बसी हुई है, ये प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए न जय राजा कोटि में है, न प्रजा कोटि में है, इन सब कोटियों से ऊपर इनका अपना स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखिए, जहाँ पर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव भूत भावन श्री काशी विश्वनाथ विराजते हैं, वह स्थान ऊंचा है। जिस प्रकार त्रिशूल का मध्य शूल ऊंचा होता है, और फिर इधर गोदावरी का कभी प्रवाह हुआ करता था, उधर मैदागिन मंदाकिनी का प्रवाह हुआ करता था। बाद में वो सब प्रवाह धीरे धीरे विकास और इन सब चीज़ों के सामने जो है बौने होते चले गए और फिर उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन आज भी अगर उस दृष्टि से भी आप देखें तो जहाँ पर देवादिदेव महादेव विराजते हैं वह ज्ञानवापी और ये गोदौलिया और मैदागिन, इनकी भी आकृति त्रिशूल के समान यहाँ पर है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अभिमुक्त क्षेत्र है, जो प्रलय काल में नष्ट होने वाली नहीं है, जो मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, विलक्षणता, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का, प्रकाशित करने का, उद्भासित करने का सामर्थ्य रखती है, वह काशी है जहाँ पर आप सब बैठे हैं। का दर्शन या उनका स्नान या उनका आचमन, गंगे तो दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। कोई स्नान करे तो उसको क्या फल प्राप्त हो, इसका शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। और शिव पूजनम, भगवान शिव की पूजा। तो भगवान विश्वनाथ तो यहाँ पर उनकी राजधानी साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी, तो उनकी राजधानी है। और जैसा कहा जाता है कि काशी का हर कंकर शंकर समान है। चना चबैना गंगजल जौ पूर्वय करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। और इस दरबार की ये भी एक विशिष्ट महत्ता है, जहाँ पर स्वयं भगवान विश्वनाथ और उनकी प्राणवल्लभा अन्नपूर्णा प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जीविते अन्नदातृत्व मृते मोक्षम ददाम्य। जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है
तब तक भगवती अन्नपूर्णा पेट भरने की गारंटी देती है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। इसको प्रामाणिक तौर पर इसकी परीक्षा भी की गई है और परीक्षा में वो सफल भी रहा है कि पुरातनता को नष्ट किए बिना इसको नए कलेवर में कैसे सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण वर्तमान की जो काशी है वो दृष्टिगोचर हो रही है, जहाँ पर 2000 मीटर में स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ मंदिर आज 50,000। देखिए, विकास तो होना ही है, समय की मांग है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके अनुसार हम विकास भी करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, जैसा मैं उदयपुर में एक मंदिर है एक लिंग महादेव करके, मैं गया था वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ वो ये हुआ कि जब आप कोई पुरातात्विक चीज़ों को आप विकास के पैमाने पर ढालते हैं, उसको नया कलेवर देते हैं और जब उसको नष्ट भ्रष्ट करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा भी समाप्त होती है। ये बात तो तय है, चाहे हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और चार धाम की कनेक्टिविटी के लिए उसका रास्ता बनाएं, चाहे पहाड़ों को तोड़ो, चाहे पेड़ों को काटें, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब चीज़ों की आवश्यकता है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ में जाने के बाद एक अनुभव लिया कि उस मंदिर को वहाँ के राजा ने यथावत अभी तक रखा है, उसमें कहीं कोई मॉडर्नाइज नहीं किया है, कोई नए रूप रंग में उसको नहीं ढाला है, कोई रंग रोगन पेंट और लाइटिंग ये सब नहीं किया है। हाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसके जर्रे जर्रे से, उसके एक एक कण कण से ऊर्जा जो है वो प्रसरित हो रही है और वो हमको आनंदित कर रही है, हमको अभिषिक्त कर रही है, अनुग्रहित कर रही है, और कहीं स्पंदन हो रहा है पूरे सांगोपांग नख से सिख तक। चैप्टर पर बात कर रहे हैं तो हम केवल यहीं रहें तो अच्छा रहेगा, बजाय कि कहीं और जाने के। तो यह कार्यक्रम एकदम से बिल्कुल नवीन कार्यक्रम है बनारस के लिए और बनारस वालों के लिए और देश के लिए भी, क्यों मान्यता दी, और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आज के इस पर्व के लिए बस इतना ही कहते हुए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भी अवसर दिया किंचन को, और यह एक बड़ा आप जो मिशन लेके चल रही हैं, निश्चित रूप से भगवान आपको शक्ति सामर्थ्य दें और ये देश के अनेक भूभाग में इस प्रकार के आयोजन हों और वहाँ की उन चीज़ों को लेकर के हम बड़े रूप में आएँ, और एक बार फिर दिल्ली में जब बड़ा समारोह हो वहाँ पर आकर के देश के अनेक भूभाग के संकलित जो स्थान हैं, जो महत्व के स्थल हैं, उन सबको वहाँ पर केंद्रित करके एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। भारत अबाध गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर और उन्नत होता रहे। भारत विश्व का गुरु जैसा था उसका स्थान, वह पुनः उस पर प्रतिष्ठित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आदर सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ भी नहीं, ये फैक्ट है, रिपोर्ट देख लीजिए। मैं चूँकि जापानीज कोलैबोरेशन से जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट से और दूसरी संस्थाओं से, और काफ़ी अरसे से मामला है। उन लोगों ने कहा कि आप नहीं आए, हमने कहा मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, कहा ठीक है। तो उन्होंने बेसिक के सवाल पूछा कि आपने क्योतो का अध्ययन किया है, शिराकावागो का अध्ययन किया है, टोक्यो का अध्ययन किया है। मैं एक साल उसी तरह रह के अध्ययन किया, नॉट रिसर्च। गाँव में उसी तरह रहिए, तातामी पर सोइए, झाड़ी में जाइए, लाइक दैट। तो उन्होंने पूछा आप काशी से आते हैं तो क्यों नहीं ऐसा होता है? तो बड़ी सीधी सी बात है, ट्रेडिशन जो भी हमारे हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया, श्रीकांत जी ने बताया कि पुराने हेरिटेज को, अब छोटा सा पेन भरा थोड़ा दर्दीला है, लेकिन दर्द नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा तभी आता है जो पूरा दर्द आप सह ले। तो एक द्रौपदा दिव्य थे, मंदिर जो टूट गया है, वहां पर वट वृक्ष था, टूट गया है। कॉस्मिक एनर्जी जो नासा की प्रोजेक्ट चली है, उसके अनुसार 3 ऐसे क्षेत्र पाए गए हैं जो कॉस्मिक एनर्जी के सबसे बड़े केंद्र। ओल्डेस्ट ज्ञानवापी है, जुड़ा हुआ विश्वनाथ जी का, ठीक, मध्यमेश्वर है, और तीसरा द्रौपदा दीपिका है। सारे फेमिनिन पावर और नेचर की एनर्जी को सब छपा है साइंस के जर्नल में, यहाँ वाले मैगजीन में नहीं, नेचर और साइंस में छपा है। जब वहां से हटा तो ठीक है, हटेगा। तो आर्किटेक्चर में कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं अलाइनमेंट ओरिएंटेशन। वहां से आपने हटाया तो उसी एंगल पर हटाना है जहां से सूर्य की गति उसी तरह से आ रही है, और उसी एंगल पर उस तरह बैठा दे, और पुनः जो सांस्कृतिक परंपरा जिनको इन्होंने बात किया गुरु जी ने,
प्राण प्रतिष्ठा के जरिए हम वो ट्रांसफर करते हैं, जिसे फीलियल ब्रीथ या प्राण कहते हैं, तब वो हो जाएगा, आज वो नहीं है। और जिन साइंटिस्ट ने काम किया, जॉन टी मॉलविल, फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑनर किया, उनका मैं असिस्टेंट 7 साल रहा हूँ जब ये प्रोजेक्ट चल रही थी। वो जैसे रो रहे थे कि भाई मेन तो सेंटर ही गायब हो गया, तो अब हम नापे कैसे समझे। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उसी तरह से समझे कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, फिजिशियन के पास, थैंक टू वहाँ के पब्लिक, थैंक टू ऐसे आचार्यों को जिन्होंने सहयोग देके बनाया। तो अब जरूरत यह है कि जो साइंटिफिक इस तरह की चीजें ना सुने जो दुनिया में अकेली थी, उनको हम उस रूप में जोड़ के बनाएं जिससे कह सके कि ये जो एनर्जी है कहने से नहीं होगा। आज के वैज्ञानिक युग में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ कथा से नहीं होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो इस तरह के साइंस में गड़बड़ी हुई है, हम सुधार सकते हैं। हम उसी अलाइनमेंट पर मेजर करके उसका मिनिएचर लेके बना के कर सकते हैं। यह एक पहला उदाहरण है। दूसरा ये उदाहरण होगा, जैसे आप क्योटो में जाइए, तेरेसिन में जाइए, पेकिंग में जाइए, हमने कई जगह का ये मॉडल लेके कहा गया कि ऐसे बनाएंगे। अरे वो कहाँ से सेंस लाएंगे? जब आप जाइए, आप जाते हैं क्योटो में जाइए और देखिए, जैसे आपके यहाँ जैसे साधनाथ है, वहाँ जा घूम के देखिए। हमने टेस्ट किया है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, जिनके साथ में काम किया शोभा युयामा, तो कहे कि कैसे टेस्ट करेंगे। हमने कहा हम लोग बनारसी है, इतना का अभाव है जिसको मैंने बहुत वैदिक और सबसे जोड़ के कहा गया, ये कहीं से यदि लाया जाए और मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करना ही होगा, कोई चारा नहीं है, तभी ये हो। तो सबसे पहली बात है, 23 साल तक रोम जो है हेरिटेज सिटी ऑफ यूरोप रहा, 23 साल तक हम लोगों ने उसका भी अध्ययन किया। मेन बात हम लोगों ने कहा कि वहाँ की जनता इस तरह से, मेरा कैमरा बिगड़ गया, मैं नहीं बोल सकता इटालियन, गया ऐसे ऐसे करके समझाया कि ये है, ये मेरा कार्ड है, देख लीजिए। ओके, गया भीतर से रिपेयर किया, बैटरी लगाया, चालू कर दिया। हमने कहा व्हाट विल बी द पेमेंट, कितना, ऐसे बताया। छोटी दुकान थी, तो उसने कहा 2 यूरो का। तो हम ऐसे पॉकेट में हाथ डाल, विच कंट्री, तो हमने कहा इंडोने, मैं इंडिया से। इंडोने, नो, इंडो, इंडिया से आया। दैट वाज द इमेज ऑफ इंडिया, स्टिल है। केवल वेस्ट की बात नहीं कीजिए, ऐसे हैं अभी भी। जो हिंदू होंगे या जो डीप रिलीजियस थॉट में होंगे, और भी धर्मों में होंगे, इंक्लूडिंग इवन इस्लाम, 108 की माला पहनते हैं, जपते हैं। कभी सोचा कि है क्या ये? अब देखिए शास्त्र विधि को कैसे पलट के दे रहा है। मैंने माना कि श्रीकांत जी विश्वनाथ जी के रूप हैं। कैसे रूप है भाई? दिन रात वही करते करते उन्हें अंश आ गया है। तो मंत्र आप ओम नमः शिवाय छोड़ दीजिए, ओम श्री कांताय नमः कह दिया आपने, वही पा लिया। ये है हमारी शास्त्रीय विधि। अब इसका जो मैं तब कहने जा रहा हूँ, ये तो एनालिसिस है। 12 गुणे 9 है। यजुर्वेद को लेंगे तो खट ऋतु का वर्ण है और 2 चरण होते हैं, ऊपर या नीचे। दिन में भी 2 हो गए, दिन में गए फिर आप यही फिर ऐसे गुणा करिए, 6 में 2, 12 हुए। इस तरह से 12 राशियां हुई, 12 महीने हो गए। ये हो गया काल चक्र। अब दिक देखिए तो हमारे यहाँ अष्ट दिक का वर्णन है, 4 दिशाएं, 4 कार्डिनालिटी। और कभी आप ट्राई नहीं कर सकते जब तक कि सेंटर ना हो। जोड़िए, 4 + 4 + 1 कितना हुआ? 9 हुआ, गुणा कर दीजिए, 108 होगा। तो केवल आप माला नहीं फेर रहे हैं, किसी भी नाम को लेकर के उससे हम पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को लेकर 1 साल के लिए घुमा दे रहे हैं। और ऐसी यात्रा दुनिया में आज जो 25 एग्जिस्ट कर रहे थे, आज के 50 साल पहले, आज केवल भारत में क्या दुनिया में एक ही जगह जहाँ है, वो है पंचकोशी यात्रा, जिस पर 108 मंदिर है। और उसी तरह से नाड़ी शास्त्र से है। और आज तक अब यूनेस्को में नहीं गया है। ये भी बनारसी स्टाइल है। बीच में कुछ कहने का, अरे राजा ये तो शिव के नगरिया उन्होंने देखी है, अरे भाई यू देखी है तो तुम क्या करेंगे? हो बड़े कॉमन है। नील पुष्पो मेरे गुरु जी को आज गुरु में मानता हूँ, कहते हैं क्लासिक ह्यूमन सेंस का इतना डीपली जुड़ जाना कि सोल में अपने को शिव समझता है। कहीं भी जैसे एक उदाहरण देखें, हम लोग हेरिटेज का सर्वे कर रहे थे, तो जब हम लोग सर्वे करते हैं किस तरह से डीपर, तो ऐसे नहीं हो, कुछ फटे पुराने, कुछ गमछा लिए हुए, थोड़ा पान खा लिए, थोड़ा बीड़ी पीते हुए,
जिससे कोई ये समझे कि मैं पाठ हूँ उसका। मणिकर्णिका के पास एक अंधेर फटे और ये पान चूते हुए, थोड़ा दारू की महक भी आ रही थी, सीधे कालर पकड़ा। मैं भोजपुरी में जो हुआ वही बता रहा हूँ। काकारे सर्वा ते रणवा है इसका, राणा मेरा नाम है। काकारे सर्वा ते रणवा है इसका। मैं और पकड़ लिया काल। मैं एकदम भौचक्के हो गया कि आदमी बाई नेम हमें जानता है, इसका मतलब जो ऊपर से दिख रहा है नहीं, कुछ और है। मैंने तुरंत कहा कि हाँ महाराज मैं ही हूँ। तो ही हेरिटेज की चक्कर चलाओ था इस, ये 93 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से हम लोग धंधा कर रहे हैं। तो हमने कहा हाँ, कहा एक सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दो, और सही जवाब दिए तो गुरु तो के मालूम नहीं तो अस मार मार में ही जाए। तो और लोग देख रहे थे। उसने पूछा सीधे बताओ ये नगर के चलावत है? हमने कहा वो तो दुनिया जानती है, विश्वनाथ जी चलाते हैं। क्या बस बच्चे बस यही बात तू समझ गए, सब हेरिटेज हल हो जाएगा। अब चल मिठाई खा ले। जब हम ऐसे पॉकेट में हाथ डाले तो कहा बस खबरदार, ये बनारस से बड़ी मार मार, जिलेबी पूरी जम के खाओ, पैसा हम न दे। ये जो स्टाइल है, नील गुस्सो कहते हैं कि दुनिया भर घूमने के बाद 40 साल अध्ययन करने के बाद कहीं नहीं। तो इस वो थे जो 12वीं शताब्दी से परंपरा चलती है, 14वीं में जाके स्टेब्लिश है, ग्रंथों में दिया हुआ। अब विधान ये है कि एक घाट पर स्नान करेंगे तो 1 लाख योनि में आप शुद्ध हो, मोक्ष नहीं मिल रहा है, ये भी एक दूसरी कथा है। तो आप जरा करिए, हम लोग प्रैक्टिकली किए कि हो सकता है क्या। पता लगा कि 11 से 12 घंटा लगेगा और 60 से 61 जाते जाते आप बेहोश हो जाएंगे। 2 जाने चले गए हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल। तब हुआ कि जरा शास्त्र पढ़ो। तो शास्त्र में लिखा ये है, तब का पुराना लिखा हुआ है कि यह सैद्धांतिक है, प्रायोगिक है। केवल पंच तीर्थ यात्रा करके, शेष को सुमिरन करके, क्षमा स्रोत नील गुस्सो कहीं भी दुनिया में इस तरह नहीं है। तो क्या इन वैल्यूज को हम उस तरह से ऐड नहीं करेंगे? जैसे देव दीपावली की बात हुई, तो देव दीपावली अलग नहीं है। मैं भी यूनेस्को कमेटी में दूसरे रूप में काम करता हूँ। होता ये है कि बाहरी लोग आ करके बहुत अच्छा तो बना देते हैं, लेकिन हमारा जो दर्द है, फसाना है, निगेटिव है, उसे आप सुनने को तैयार ही नहीं है। हर चीज आप ब्यूटिफिकेशन में लाते हैं। तो थोड़ा काशी वालों को भी तो रखिए, वो टेढ़ा बोलेगा यही नहीं करेगा, लेकिन उसमें वो दर्द समाहित होगा, तो उसको उस रूप में किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। अभी जैसे यूनेस्को की बात हो रही है कि दिवाली की हुई, 1-2 नहीं है, पान भी गया हुआ है यहाँ का, यहाँ का मुंह की स्टाइल भी गई हुई है। दुनिया क्या सीख सकती है काशी से? तो मुक्त क्षेत्र हैं, उनका कार्य सिर्फ इतना है कि वो काशी प्राप्त करा देना। वास्तव में तो यहीं पर आपको मोक्ष मिलना है, और वो मोक्ष मिलना है तब जब भगवान तारक मंत्र आपको प्रदान करेंगे और उससे सद्गति और मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारी सदियों पुरानी जो परंपरा है, जो विरासत है, उसको जीवंत रखना, क्योंकि आज के विकास की दौड़ में बहुत सारी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट भी होती हैं, स्वाभाविक है, उसको स्वीकार भी करना चाहिए सबको। एक जर्जर मकान है और वो इतना बड़ा मकान है कि वो हवा जब तेज़ चलती है तो उससे ही हिलता है वो, और उसके आसपास के लोग इस बात को लेकर के बैठे हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे बाप दादा की विरासत है, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो मकान गिर जाए तो उसके आसपास के असंख्य, माने हजारों हजार की संख्या में दब करके लोग मर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के बैठना भी नहीं ठीक है कि इस विरासत को हम नष्ट भ्रष्ट नहीं होने देंगे। जो समय की मांग होती है उसके हिसाब से परिवर्तनशील जगत है, वो परिवर्तन स्वाभाविक है। बनारस में जैसा आपने कहा, का राजा और का गुरु बोलने की परंपरा है, और वो सीधे सीधे संकेत करती है हमारे आराध्य भगवान श्री काशी विश्वनाथ को, जो राजा रूप में भी विराजते हैं, गुरु रूप में भी विराजते हैं। जब उनका भव्य श्रृंगार होता है तो राजराजेश्वर का स्वरूप हो जाता है, और वैसे वो गुरु रूप में रहते हैं। ऐसे एक बार वेदांत के एक विद्वान थे, उन्होंने पारसनाथ द्विवेदी जी, उन्होंने ऐसे बातों बातों में मनोविनोद में कहा कि भाई मंदिर में जा कर के घंटा क्यों बजाते हो? घंटा इसलिए बजाते हो कि वहाँ पर पहुँचे तो नंदी जी से भगवान प्रश्न करते हैं, बार बार विश्राम में रहते हैं, नंदी से पूछते हैं कौन आया था घंटा बजाया? तो वो आए थे, आनंद जी आए थे। अच्छा जाओ कल्याण हो,
बोल देना। फिर कौन बजाया? वहाँ तो हज़ारों लोग बजा रहे हैं। गोकुल जी आए थे, अपने सुविधा साड़ी के अमित जी आए थे। ऐसे करके सबको बताते गए, वो कहते गए कि चलो भाई उनका कर दो, अभ्युदय हो, कल्याण हो। नंदी जी परेशान होकर के माता जी से, थोड़ा विश्राम का समय तो बार बार हमसे पूछेंगे, तो स्वयं भगवती उनसे कहती हैं कि मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करने के लिए मैं बैठी हूँ। आप अपने सतत रूप में, परमाणु रूप में हमें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ भी अपने असंख्य शक्तियों के पुंज में बैठते हैं और उनकी अनेकानेक शक्तियाँ जो है चारों तरफ चतुर्दिक प्रसरित होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मंदिर के कुछ भी नहीं था वहाँ पर, तो वहाँ कलकत्ता के मुसलमान ने उस समय के तत्कालीन महंत पंडित राम शंकर त्रिपाठी से आग्रह किया कि मुझे भगवान को दूध चढ़ाना है, भगवान को नहीं मालिक को दूध चढ़ाना है, तो आप हमको अनुमति दीजिए। वो विज्ञ थे, उस समय के अंग्रेजी से MA थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा देखो, अगर हमसे आप अनुमति मांगते हो तो मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी प्रतिबद्धता है। तुम जाते हो श्रद्धा भाव लेकर के, तो मैं तुमको रोकता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अनुमति देंगे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो ज्ञानवापी परिसर में ही उसने जो है दूध चढ़ा दिया ज़मीन में, मालिक कह करके, और नीचे से जैसे फूल खिलता है वैसे उसी प्रकार से एक छोटा सा शिवलिंग ऊपर अंकुरित होकर के आ गया। ये बात प्रामाणिक है, एक काल्पनिक नहीं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर भाव कुभाव अनख आलसहूँ की बात जो है वो ऐसी मान्यता है जहाँ पर चतुर्दिक शिव का साम्राज्य है, जहाँ का हर कंकर शंकर समान है। नग्नम भग्नम न पूजयेत, नग्न और भग्न की पूजा नहीं होती है, लेकिन शैव शास्त्र ये विशिष्ट विधान करता है कि काशी के परिक्षेत्र में यदि कोई खंडित भी शिवलिंग है तो न केवल शिवलिंग के रूप में अपितु वह ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्य और मान्य है। इसलिए उस पर भी अगर हम पंचक्रोशी काशी की बात किए, आज के 100, 150, 200 साल पहले तक लोग इस पार गंगा के मलमूत्र भी त्याग नहीं करते थे, क्योंकि यत्र तत्र उन्हीं का साम्राज्य है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसको कि भ्रष्ट मान लिया जाए या फिर उसको ऐसा मान लिया जाए कि यहाँ पर त्याज्य है मलमूत्र। तो गंगा के उस पार लोग जाते थे ये करने के लिए, लेकिन आज के समय में तो संभव नहीं है। तो जाने अनजाने कहीं हमसे कोई अपराध हो जाए, उसके परिहार के लिए ये विधान किया गया कि पंचक्रोशी परिक्रमा करके हम अपने पाप ताप को विनष्ट कर सकते हैं और भगवान की शरणागति को, उनके कृपा अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। तो रही बात ये कि हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, तो बनारस की रामनगर की रामलीला अगर होती है तो आप जो परंपरागत काशीवासी हैं उनका थोड़ा हाव भाव देखिए। वो आँख में काजल भी लगाते हैं, साफा भी बांधते हैं, उनके हाथ में चांदी से जड़ित जो है, उनके पास छड़ी भी होती है, उनका जूता भी, कपड़ा भी दप दप करता है, उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है, लेकिन वो अपने किसी राजा और महाराजा से अपने को कम नहीं समझता है। ये अपनी काशी का सामर्थ्य है और उनकी ऐसी निष्ठा है उसके प्रति। तो हम परंपराओं को लेकर के जीने वाले लोग हैं। हम ठीक है, विकास के दौड़ में कुछ चीज़ें छूटती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमको भी कटिबद्ध होना होगा, प्रयत्नशील होना होगा। और उसको लेकर के हम देखिए, सरकारें सब कुछ नहीं करती हैं। परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन, उनका पोषण, उनका पालन वो स्वयं हमको करने के लिए उद्यत होना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान के लिए मोदी जी जो है वहाँ पर झाड़ू लेकर के 80 घाट पर आए, फावड़ा चलाए, तो क्या मोदी जी ही रोज़ झाड़ू लगाएंगे? क्या हमारा आपका? उन्होंने एक संदेश दिया कि हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने इर्द गिर्द आसपास इन सब चीज़ों का रख रखाव करें। आपने प्रोफेसर साहब ने कहा जैसा कि पान खा करके थूक देंगे, कहीं भी नया डिवाइडर पेंट होगा, ये सब होगा तो। लेकिन हाँ, जो सीखने वाली बात है, वो सीखने की बात यह है कि जब काशीवासी थोड़ा सा भांग लेकर के, ठंडई लेकर के और महादेवमय हो करके, और जब उनको अपनी आज भी 50 साल से लोग, 40-50 साल से ऐसे लोग हैं जो नित्य के दर्शनार्थी हैं, बाबा की शयनार्थी के, उनको स्पर्श नहीं करते, लेकिन उनकी ये आस्था है, उनका कुछ छूटता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने वाली बात है, परंपराओं को जो हम जीते हैं उसको ले करके चलते हैं। 7 वार में 9 त्यौहार की काशी मान्यता ऐसे ही नहीं रखती है, क्योंकि हम उन्हीं परंपराओं में जीते हैं, उसमें रचे बसे हैं। मान्यता है, इसकी एक प्रतिष्ठा है, और उन्हीं परंपराओं के कारण 7 वार में 9 त्यौहार की मान्यता रखने वाली काशी जो है उसकी विश्व स्तर पर अपनी पहचान है। प्राचीन सभ्यता की नगरी है और अनेक यहाँ पर आपको अनुभव जीवन में मिलते हैं जब हम उसमें डूबते हैं। सागर की गहराई में निर्भय हो जाने वाले
मोती निकाल लाते हैं जीवट वाले मत वाले। तो ये कोई बिजनेस का, कोई व्यापार का, कोई उस तरीके का यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर तो मेन है कि जब यहाँ पर कोई आएगा तो सबसे पहले उसके दिल दिमाग में भगवान श्री काशी विश्वनाथ, माँ गंगा यही आएंगी। और एक बार यहाँ पर एक पीएमओ की एक पूरी टीम आई हुई थी और यहीं पर होटल में मीटिंग थी। उसमें ये कहा गया कि भाई इसको निखारा जा सकता है। उस समय हम लोग थे और मुझे जहाँ तक स्मरण, मैंने उनसे कहा भी था कि देखिए गोदौलिया से लेकर के और कम से कम चौक तक का जो भूभाग है इसको एकदम जो है ऐसा कर दिया जाए लकदक, जहाँ पर आने वाले लोग देश विदेश से आते हैं लोग। पहले तो विदेशी आकर के यहाँ पर पान और कूड़ा और गंदगी का फ़ोटो खींच कर ले जाते थे, लेकिन बाद में उस चीज़ को मोदी जी ने सोचा समझा और उसको उस रूप में वहाँ पर प्रदान किया। तो अब कहने का अभिप्राय है कि जो ये परिक्षेत्र है यदि अच्छा हो जाए तो आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा यहाँ पर अनुभव भी प्राप्त होगा। ऐसी है जो जीवंत है, जो अपने आप में अद्भुत है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है। तो इसके प्रति हम उसी प्रकार से अपने भाव को रख करके और यदि हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत आपका आभार और मैं आपसे अनुमति भी लूँगा इसके बाद जाने की। जय विष्णु जी, the floor is open for questions if anybody would like to ask any question to our esteemed panelist. किसी गुरुजी ये बताइए, बनारस में मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है, ठीक बात है। जो आदमी एक्सीडेंटल मरता है या मर्डर से मरता है या अन्य किसी भी कारण से मरता है, जो अपने सही रूप में नहीं होता है, क्या उसको भी मोक्ष मिलता है? उसी को मोक्ष मिलता है जो अस्वाभाविक। बहुत से घटनाएं आपने सुनी होंगी कि बहुत से लोग आकर के पुस्तकों को पढ़ करके इन सब चीज़ों को कि यहाँ पर मरने से मोक्ष होता है, तो कई बार ऊपर से कूद करके मर गए, फांसी लगा करके मर गए। तो इससे मोक्ष नहीं मिलता है, बल्कि वो प्रेत हो जाता है और वह प्रेतत्व से मुक्ति का उपाय करके फिर मोक्ष को ग्रहण करता है। तो स्वाभाविक जिसकी मृत्यु होती है उसी को मोक्ष मिलता है। से केदार जो है वो मरने के बाद केदार खंड में कभी भी उसको जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं आना पड़ता है। और देखिए हमारे यहाँ 3 खंड है, काशी खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। तीनों खंड के अधिपति हैं केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और विश्वेश्वर। तीनों के गणेश हैं, चिंतामणि गणेश, डुंडीराज गणेश, बड़ा गणेश। तीनों के श्री यंत्र हैं, श्री चक्रलिंगेश्वर केदार जी में, अपने यंत्रलेश्वर अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर है और वहाँ ओंकारेश्वर में भी यंत्रेश्वर महादेव का मंदिर है। तो केदार के बारे में तो विश्वेश्वर खंड से भी ज़्यादा मान्यता स्कंद पुराण में वर्णित है कि वहाँ तो मरने वाले को सद्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग तो केदार खंड में ही, आप भी और हम भी सब रहने वाले हैं, तो हम सब कहीं भटकेंगे नहीं, सीधे भगवान के शरणागति को, चरण शरण को ही प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। And great scholars, they have been speaking on this, and Rana P.V. Singh is an encyclopedia in himself, and you are speaking from your own great, I think, religious experiences and knowledge. So it's a great, good listening to you both. I have one thing Vinoba Bhave used to say, because when you were speaking, Professor Rana P.V. Singh, you are giving more emphasis and importance to scientific facts, as you have been saying. You were giving more importance to your religious experiences. Vinoba Bhave has said a very beautiful thing. He said, धर्म जो है वो हमारी आँखें और विज्ञान जो है उस पर चलने का रास्ता है। So if we see like this, what would you say about this? बड़ा सिंपल इसका ये है कि चूँकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंटिस्ट इसमें शामिल हो गए हैं। जो ऋषियों ने किया, जैसा कि किम मालविल जिनके अंडर मैंने काम किया हूँ, तो वो कहते हैं कि दिक्कत ये है कि उनकी चीज़ों को हम सीधे डिकोड ही नहीं कर पाए। जैसे इसका उदाहरण परमाणु का डाल्टन पूरा जो साइंस होंगे समझते हैं, तो वही जरा कठोपनिषद में
देख लीजिए, अणोरे अणियान महतो महीयान, तो हमने केवल कह दिया उसमें से टूट के हो गया, बड़ा हो गया। जब साइंटिस्ट ने उसको कोड किया तो कहा अरे ये तो पूरा का पूरा डाल्टन थियरी शामिल है। एक उदाहरण देखिए फिर काशी से, किसी से पूछिए कितने आदित्य हैं, क्या उत्तर होगा? आप खुद बने बहन जी, 12 कहेंगे, 12 आदित्य हैं। जब ये बात किम मालवील के सामने आई 95 की बात है, तो कहा असंभव है, कहीं गलती हो रही है। मैं आचार्यों के 3-4 आचार्यों के पास गया, उन्होंने सीधे कहा क्यों राणा जी आपको कोई काम दाम नहीं है क्या? 12 हैं। लेकिन एक बहुत छोटे से आदमी ने, मतलब छोटे वर्क में थे, नहीं प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा ये बात तो बहुत सही है, जब घूमेगा ऐसे मंडल तो केंद्र नहीं होगा, इस पर 12 घूम रहा है तो 13वां होना चाहिए। मिल गया जनाब। और वो मिला जिसने पूरी जो है एक तरह से वेस्ट में कई मैगजीन, माने आप जिसको करें, लंदन टाइम्स करें, न्यूयॉर्क टाइम्स करें, एशियन एज करें, 95 की देख लीजिए, सब जगह छपा हुआ है कि दुनिया की अद्भुत चीज छिपी है काशी में। वो मिल गया। और शब्द क्या था? तो उसको हमने केवल लिटरेरी दिया, सांबादित्य केंद्रीय भूते। भूत मतलब भूत पिचास, भूत माने जो बीत गया है। साइंटिस्ट ने कहा यही गलती हो गई, लेट अस रीड पार्डनिंग फ्रॉम साइंस एंगल। तब ये पता चला कि भूत शब्द का मतलब इन्फिनिटी ऑफ टाइम भी होता है। जो ये हुआ तो कैलकुलेशन करके हुआ, सारा प्लॉट किया, जब सीधे 12 हमारे ऐसे सूद हैं। उत्तरार्क, उत्तर का अर्क, तो उसने कहा लेट मी डिकोड। पूरे नॉर्थ इंडिया में 14 जुलाई को सबसे अधिक सूर्य का रेडिएशन वहीं होता है, उत्तरार्क में। तो ये जो बातें हैं, अब विज्ञान आया है तो हमारे ऋषियों ने कहा, वो हम पूरी तरह से न समझ के या तो दूसरे रूप में ले लिए। ऐसे 10 आयाम हैं जो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनके कारण हुआ है, नहीं, उन्होंने अपनी जब टेक्निक आया तब इन मनीषियों को उन्होंने री इंटरप्रेट किया है। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं काशी को जानता हूँ, कभी नहीं कह सकता है। 333 रिसर्च बुक इंग्लिश में छपे हुए हैं, मेरा कैटलॉग देख लीजिए, 5 साल पहले की बात है, अभी बहुत आ गया है। मोदी जी के आने के बाद खांचियन के भाव छप रहा है बनारस पर, कुछ भी करके जोड़ के छाप दो, ठीक है। लेकिन ये है ओरिजिनल। सबने एक एक दिशा को लिया और सबका मेन कंक्लूजन कहेंगे तो ये कहेंगे कि हमने उसको अर्थ वहाँ तक जब समझेंगे, तब जैसे वैदिक ऋचा में उस तरह साउंड से नहीं पढ़ेंगे तो अर्थ नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें हैं, ऐसे हम लोग बैठ के और बातें आपको भेज दूंगा, कुछ लिटरेचर बहन जी को आपको, ठीक। थैंक यू। स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपंथा। यही हमारे लिए सर्वोत्तम रास्ता है कि बहुत ज़्यादा अगर खंडनवाद मंडनवाद तो पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारा रास्ता हमारे महाजनों ने, श्रेष्ठ जनों ने बनाया है, वही हमारे लिए स्वीकार्य है और वही हमारे लिए गंतव्य है, वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। बहुत बहुत। Before we move ahead with the next segment of today's program, we would like to take a moment to acknowledge and honor our panelists for their valuable time, perspectives and contribution. As a small token of our appreciation, we will now proceed with the felicitation of our panelists. I would like to request Shri Prem Mishra ji to kindly felicitate the panelists. ऑफिशियल नेम है वाराणसी। तो वाराणसी ये 2 नदियों के बीच की जगह है। इट्स अ जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सिटी, वरना एंड असी। तो एक नदी बहुत ही नज़दीक है, हम जिस जगह पे है बहुत ही नज़दीक वरना नदी बहती है, और असी नदी बहुत ही साउदर्न जगह पे असी नदी बहती है। तो ये शहर 2 नदियों के बीच की जगह है, वरना और असी मिलके बनती है वाराणसी। इट्स अ जियोग्राफिकल एस्पेक्ट बिटवीन 2 रिवर्स, वन इज़ वरना एंड अदर वन इज़ असी। लिंग्विस्टिक चेंज, वरना बिकेम वरुणा एंड असी बिकेम अस्सी। मैं आज के डेट में बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ कि लोग 80 घाट को कहते हैं कि ये 80वां नंबर घाट है। तो इट्स अ रिवर, यूज्ड टू बी अ रिवर। तो ये जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इज़ काशी। तो देर इज़ अ फ्रेज इन संस्कृत कि काश्य ही काश्यते काशिका, काशी सर्व प्रकाशिका।
विच मीन्स काशी जो है वो लाइट इमिट करता है और सबको प्रकाशित करता है। यहाँ पे प्रकाश का मतलब है विजडम। काशी के लिए, काशी हमेशा हर इंसान को हर पीरियड में वेलकम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले लोग जब संत जो काव्यों में वो डिबेट करते थे, शंख तीर्थ काव्य तीर्थ बनते थे, जब वो कभी भी उनके ज्ञान में कमी होती थी तो बनारस आते थे, काशी आते थे अपने ज्ञान को अर्जित करने के, ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और आज के डेट में जब भी कोई इन्फ्लुएंसर के रीच में कमी होती है और बनारस आते हैं, एक रील डालते उनका मिलियंस पे वो चला जाता है। आप देखोगे कोई भी इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर में बनारस बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। उनका फर्स्ट 3 शायद पिन पोस्ट में एक बनारस होता है। तो बनारस हमेशा हर पीरियड में लोगों को रीच देता है, वो जिस भी फील्ड में हो। वो कोई बोध के लिए आता है, कोई शोध के लिए आता है, तो बनारस हमेशा हर किसी को जो चाहिए वो दे देता है। साहब सुबह गंगा के पानी में वज़ू करते थे, आलमगीर में नमाज़ पढ़ते थे और माँ मंगला गौरी के सामने रियाज करते थे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। हमारे जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें 3 ही हब हुआ करते थे, उसमें से बनारस एक हब हुआ करता था। अवध स्कूल ऑफ म्यूज़िक के अंदर आता था। रसूलन बाई, गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी बाई, कितने लोगों का नाम ले, और हर एक चीज़ में, इवन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब उन्होंने, सिद्धेश्वरी देवी ने तो लिखा था कि चुन चुन के फूल ले लो, ये अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए, और ये उस टाइम बहुत ही फेमस हुआ था। गांधी जी ने इनको, तवाइफों को कहा था कि आप सत्याग्रह मूवमेंट को प्रमोट करो, क्योंकि आपकी रसूख समाज में बहुत ज़्यादा है, आपकी बातें लोग ज़्यादा मानते हैं, एंड दे आर द ओनली टैक्स पेयर्स इन दैट टाइम। मतलब समाज के जो औरतें होती थी उनमें वही बस टैक्स पेयर्स होते थे। इसके बाद आते brought into India. You can see Rashika and I with the then Minister of State for External Affairs, Meenakshi Lekhi ji. Of course, a lot of student engagement. If you see over here, this is a very unique engagement. I will come to that later. I'm in Delhi for a week. So it is from those engagements. Next one, please. Denmark. Denmark has remained Denmark is one of the Banaras's largest development partners. So with Denmark, we focus on 2 aspects. One at the foreign ministry level, that is guiding Denmark's Africa agenda, especially keeping in mind India's engagement in the region. And of course, various youth engagement initiatives. Next one, please. Ambassador Solaris is here. He has been too kind and supported us, our various initiatives, especially our youth exchange initiatives, when it came to Raisen House's engagement with Guatemala. Next one, please. Netherlands. Netherlands, it's a 2-fold partnership. We've worked with the government of Netherlands, especially when it comes to critical minerals and tech partnerships, but also a lot of engagement with the embassy in Delhi. You can see the Dutch ambassador, Ambassador Marissa Gerards, in conversation with our students and cohort. Next one, please. I really want to express my deepest gratitude for the hospitality given to me in this ancient city of Varanasi, or Kashi. This is actually my second time in Varanasi, and always when I come, it feels like a new experience. The timeless ambience, the unique spiritual essence, the narrow alleys, the ancient temples, the impressive culture, but moreover, the hospitality of all of you, dear people, dear population of Varanasi, is what makes this visit more unique every time, and this one has been a wonderful visit. So thank you so much for receiving me. I want to start congratulating, of course, last week, as many of you know, there was an important meeting in New Delhi. It was the 20th session of the UNESCO Intangible Cultural Heritage Session. And in that session, that was very important and was held at the Red Fort in New Delhi, the festival of Deepavali or Diwali or Diwali was inscribed in the list of intangible cultural heritage. So many congratulations to all the Indian people for that
amazing achievement. I have been living to the valleys already, and it's always a wonderful experience, a beautiful time in which also we can see the beauty of the light, the wisdom, and the family values that are part essential of the culture of India are shared with all of us, particularly diplomats and ambassadors that are appointed in this beautiful country. It was the moment of some years ago of the opening of my embassy. It was my former Minister of Foreign Affairs, Carlos Raúl Morales, with Her Excellency late Minister of Foreign Affairs, Sushma Swaraj. Next one, please. We can see here when we talk about heritage, these are the temples of Tikal in Guatemala in the north, heritage of the Mayan civilization, very well compared, and there are some investigations about and research about the temples, the beautiful temples that we can see in Tamil Nadu and in other areas of India. Next one, please. Guatemala and India have collaborated in the past in many ways. We have been also members of the ECOSOC, which is the Economic and Social Council, and in this council we have both advocated for a better development of our cultures and our people. Here is in the ECOSOC when Guatemala and India were representing, and that was one of the first meetings of the Commission for the Status of Women, where you can see Begum Swaraj Hamid Ali. She was one of the promoters of India Women Empowerment, and Misara Monzon from Guatemala. Next one, please. This was a very old picture with former Prime Minister of India, Ms. Indira Gandhi, and the President of the General Assembly during that time from Guatemala, Mr. Emilio Arenales, in an important meeting with the former Secretary General of the United Nations, U Thant. Next one. These are some more recent pictures. I'm sure, for example, for many of you, some of the faces are familiar. He was a former permanent representative of India in the United Nations for some years, Ambassador Hardeep Puri, who is now Minister of State for Oil, and former Minister of Guatemala, Gerd Rosenthal, when Guatemala and India were in the Security Council in 2012 and 2013. Next one, please. These are important events also. Here in the left is my compatriot, Ms. Rigoberta Menchú Tum, Nobel Peace Prize in 1992, meeting with the Ambassador of India in Guatemala. And on the other picture, we can see the Nobel Literature Prize 1967, Mr. Miguel Ángel Asturias, who visited this beautiful country in 1956 and 1957. This is some kind of extract from the newspapers. Some of your predecessors, particularly coming from the south of India, established their houses and their living areas in Guatemala, in the Caribbean. Some of them are dedicated and are very successful entrepreneurs in everything what is related to fish and to fishing. And they have beautiful traditions that are very well kept in Guatemala, particularly in the Atlantic Ocean, in the Caribbean of Guatemala. I think you have to. First of all, yes, thank you, yes, thank you. It has been a wonderful day, and thank you so much, Rahul, of course accompanied by all the members of Raisina House. Since last night, of course, being in this beautiful boat ride along the Ganga River was such an amazing experience. As you beautifully well said, I came here for the first time. It was in May. It was a little bit warm. So, but this second time it has been like the first time for me, because I have, thanks to you and to your team, have seen many of the beautiful heritage of the city, a wonderful city that transports us, as I said, to our deep spirituality. Visiting also today the Vishwanath temple was something extremely spiritual, and of course participating with your friends, with your colleagues, and being also subject to the hospitality of the people here in Banaras, eating this delicious food and the delicious sweets, swadish, that we have tried today. Is such a wonderful experience. Certainly I believe, for example, that we can explore
particularly when we see the heritage of India. I know, for example, my country as well as many other countries in Latin America and the Caribbean, we are almost 16,000 kilometers away. But it doesn't, when we are here and with all the methods that we have in terms of the technological efforts that we have been using, it seems that we can do much more for strengthening and showing the heritage of India to the people of my country and also in the other side of the world and vice versa. Certainly with Raisina House and this new chapter launched in Varanasi, I think it will be much more also interesting to explore other avenues of mutual cultural collaboration for students, for new generations, for people that want to come to India from my country, and of course from India to Guatemala, in which we can strengthen the cultural relation. Because sometimes, and I have to tell you, sometimes it seems that it seems successful when we talk about business, and the business goes itself. But when we talk about culture, I think it's more important because we need to focus on that, and the heritage, as indicated in my previous statement, is important to be preserved. Ambassador Professor Chandrakala, I will come to you. You being the former Vice Chancellor of Maharaja Ganga Singh University, with your, I won't even fathom how deep your experience is, but if you would like to share a bit on how heritage and culture, it plays out in the New World Order, especially cultural vitality. How effective is it in the New World Order? Gaps and in promoting culture in Varanasi. Then you will find we must try to promote that religious harmony, because we must realize it that if a thing is put in a proper perspective, they will understand it. Don't think that they will not understand it. Don't make it a point that they are not going to understand it. So we have to tell them what has been our virasat, what has been our heritage. We have been not after fighting each other. We have lived in harmony for several years. It is one of the oldest living cities of the world, and why it has thrived, how it has lived. I will give you one example. Once I was giving a talk to a group of Americans. It was held in Clark's Hotel, and I was just telling them, it was I think 20-30 years back. I just asked them, you all flock to Varanasi, what is the reason behind that? There is so much of dirt, you are habituated of cleanliness and other things. What did they say? I tell you one thing, they say, Madam, when you don't know classical music and someone plays classical music, what happens? You say, kya kar raha hai? You say, what rubbish. But when you know classical music, what you say, kya taan lagai, kya meerut bajai. So then how much you appreciate that. So those of us who are little bit inclined to spiritualism, we can feel that vibration in Varanasi. And I believe that one of the most important tools for India's cultural diplomacy is the student exchange, especially through ITech and ICCR scholarships. And I was urged in very strong terms by my very good friend at ICCR, the Deputy Director General, to invite some ICCR scholars. And we do have them back, sitting at the back. So they are here with us, showcasing India's cultural diplomacy and our strength. Professor Rana, before I very quickly come to you, I will definitely want to ask Ambassador Solares this. Ambassador, Guatemala's profound Mayan and indigenous heritage embodies a deep connection to nature as well as community resilience. How might these ancient traditions serve as a compass for navigating global challenges, especially in a world that is not just bipolar or multipolar, but more interconnected than ever today? Well, as you said, many of them are very linked to nature, the traditions of the indigenous communities, the indigenous peoples in Guatemala. They keep in the traditions, they keep in their values, but it's important to come to the origins. And as the professor said in a very right and rightful way, it's important to also build an identity.
but also with that identity you can share values such as inter-religious dialogue, interfaith dialogue, such as also finding different areas in common. In fact, for example, some archaeologists from Guatemala and also some researchers from ICCR, I think they were doing some kind of research about the links between the Mayan civilization also and the Hindu civilization, particularly verifying and analyzing the way that, for example, many of these monuments were built in ancient times. And when we talk about this... One of our consultative panel with UNESCO, especially when we are trying to incorporate artificial intelligence into the city in a partnership with Google, the first question that was asked was, is Banaras capable of adapting to it? The heritage and culture is rich, but the infrastructure is poor. So, how can such a dynamic heritage site like Banaras inform strategies for fostering inclusive, regenerative tourism and shape a more equitable global future? Bienvenido, Ambassador. Muchas gracias. Gracias, Professor Padilla, Madam, my teacher, mentor, Professor Rana, Raisina House, everyone. So being Raisina House as a youth strategic group, given me opportunity, if I consider myself as a youth, although reaching 50. So every time when I prepare myself and I think that I have learned something, and I attend such program and listen to these August gathering and people, then realize I've not known anything. So again, I have to restart and start again. I remember 20 years back when me and Professor Padilla was sitting at Assi Ghat doing our exercises of the social work and women empowerment, and then how to connect with the student classes and everyone. One thing as a youth, what is my experience in learning? Kindly give Banarasi people to decide what Banaras want. Please do not do any kind of parachute planning, which actually Banaras don't want. I'm not at all against any government, I'm not against any development, but being a student learning from heritage, tourism and everything, I just wanted to give you some example. How many foreign tourist visitors were there pre-COVID, so-called this development of the city, and how many international visitors, I'm not calling tourists, were visitor coming after this post-development, right? So one has to understand what was this city before and what is city today. You were talking about AI, you were talking about technology, you were talking about development, you were talking about everything. But do we need this kind of brand identity of this cultural capital or ancient most city in the world to this world of market, that we can present this city for only visiting or increasing number of visitors to enhance your economy, or actually we wanted to protect our heritage? इस वक्त हमारे साथ हैं रसिका अग्रवाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि जो रायसीना हाउस आपका है, इसके बैनर तले आपने जो आज विमर्श कराया है, खासकर बनारस हेरिटेज सिटी है कि नहीं, और सारे विषयों पर जो विमर्श हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकला है और इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है?
जी, हमने रायसीना हाउस शुरू करा था। ये बेसिकली एक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है जो हमने 2020 में दिल्ली में शुरू करा था और अब वाराणसी में लॉन्च करने का ये मकसद है बिकॉज़ वाराणसी इज़ कैपिटल ऑफ ऑल नॉलेज। यहाँ पे इतना नॉलेज है और इतना स्कोप है यहाँ पे टू टॉक अबाउट थिंग्स, टू टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ एज वेल। सो बनारस में हमारा मेन मोटिव है लॉन्च करने का ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट ट्रेनिंग करें। वी रीच आउट टू इंस्टीट्यूशंस, वी रीच आउट टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी ट्रेन स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो डेवलप पॉलिसीज़ एंड मेक बनारस अ बेटर प्लेस। रसिका जी, आज के इस आयोजन में जो विशेषज्ञों ने अपना विचार विमर्श किया है उनमें कौन लोग खास थे? हमारे चीफ गेस्ट थे एम्बेसडर ऑफ गौतामाला, एम्बेसडर सोलारिस, और उसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर राणा पीबी सिंह थे, मैम चंद्रकला थी और श्रीकांत मिश्रा जी थे। प्रोफेसर राणा पीबी सिंह जो बनारस, खुद में बनारस है, जो ये हमारे विशेष गेस्ट थे आज के कार्यक्रम में। अंतिम सवाल है कि आज के विमर्श से क्या निष्कर्ष निकला? इस लॉन्च के साथ हम बनारस में बहुत सारा डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन लाना चाहते हैं और इस लॉन्च से हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं उन लोगों को जो अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहते हैं, स्पेशली टू यंगस्टर्स एंड टू वुमेन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एक सवाल ये है कि आज के विमर्श में कई सारे बनारस के डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठाए गए। क्या वो सवाल नक्कार खाने में चले जाएंगे या फिर वो प्रधानमंत्री तक या फिर देश की सरकार तक पहुंचेगा? उसका कोई नोटिफिकेशन आप तैयार करेंगे? जी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म पे कोई पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ओपिनियंस नहीं करते हैं। लोगों के अपने व्यूज़ हैं, लोग डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, लोग चेंज को कैसे देखते हैं, वो एम्ब्रेस कैसे करते हैं। बनारस चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन ये लोगों पर है कि वो कैसे इसको देखते हैं और कैसे इसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये रहे रसिका जी जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का तब्दीली से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ अनुज डिडवानिया जो रायसीना हाउस के फाउंडर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज का जो विमर्श हुआ है इसका उद्देश्य क्या रहा और निष्कर्ष क्या निकला। आज का उद्देश्य, मेरी बहू राशिका ये दिल्ली में पिछले 5 सालों से इस पे वर्क कर रही थी। ये जो संस्था है इसका मुख्य कार्य समाज की सेवा में लोगों को उद्वेलित करना है, प्रेरित करना है। ये आज दिल्ली में 65 एम्बेसीज़ के साथ काम कर रहे हैं और बराबर ये लोग वहाँ के लोगों से मिल के स्टूडेंट कैपेसिटी में लोगों को टीच करते हैं, बताते हैं कि हमारे देश का एनवायरनमेंट क्या है, हमारा देश कैसे तरक्की करे, इस पे पूरा ध्यान है। बनारस चैप्टर के उद्घाटन का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि बनारस के कल्चर हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए और मोदी जी के शहर को और विकास की तरफ हम क्या सहयोग कर सकते हैं। जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में हैं, उनके द्वारा एक बड़ा रूप हम लोग देना चाहते हैं, जिसका एक बहुत छोटा सा प्रयास है। ये मीडिया के माध्यम से सभी से हम अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों के इस रायसीना हाउस को पूरा का पूरा सहयोग दें। पूरी की पूरी तरह हम लोग इसमें समाज सेवा के लिए यही कार्य करेंगे और आगे करते रहेंगे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।